So before I proceed for infinite, let us see what is sequence. Okay, we need here sequence. So first I will define what is sequence. Okay, before I proceed to explain you what is sequence, you should know that these topics are very important for higher class of mathematics, right? In sequence series, right, in higher class, if you go for just and some other level of research, I mean higher level, right, then you have to construct some iterative algorithm, right? And then in your algorithm, maybe you're using your sequence, and you should know the concept of sequence, then you can talk about its convergence, right? So first of all, let us see what is sequence. In very easy language, sequence is just a map, is a function, and this is sequence the function. Suppose I'm saying that f is sequence, okay? So it is simply a function from whose domain is set of natural number to real number r. This real number r may be any set also, right? You can say the complex number. So here, but the thing is that its domain should be natural number, right? This is how we define a sequence. So obviously here the entries, right, map जो बनाएंगे इसका तो किसा लिखेंगे, f of 1 लिखेंगे इसकी entry, f of 2 लिखेंगे, f of 3 लिखेंगे, right, and so on, the value, right? You write the values like this. So here in sequence we write f of 1 as f of 1 in subscript form. f of 2 को हम लिखेंगे इस तरह से, f of 2 लिखेंगे, f of 3 किस तरीके से लिखेंगे, f of 3, and the value of the function at the end, right, in general, तो उसको हम fn लिखेंगे. इसी को हम लोग नाम देंगे sequence. Okay, this is how we define sequence, right? We will give it name. For example, okay, for example, so you can also represent by un, by xn, by sn. Any terminologies can be used to represent a sequence. Okay. So these are, I mean just a sequence, right? Sub natural number to real number r, correct? For example, if I write here, I'm defining a map from set of natural number to real number r by f of n is equals to -1 raised to the power n. अब तुम यहाँ पे x लिखो, f of x is equals to -1 to the power x, right? n लिखो, n से यहाँ क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोट करता है, राइट? सो यू कैन जस्ट डिफाइन इट, राइट? तो अब इसकी एंट्रीज किस टाइप की होंगी, ये भी देख लें, इसकी एंट्रीज किस टाइप की लिखेंगे आप. So this is sequence, right? f of 1 will be minus of 1, f of 2 will be plus of 1, f of 3 will be -1, f of 4 will be plus of 1, right? 1 minus 1, right? So the entire sequence, right, this sequence is made up of two elements, that is 1 and -1. अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बना करके ऐसे भी, that यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखी है आपने वो that is only 1 and 1. अगर किसी सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं उसको हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस. सो दिस विल बी कॉल्ड एज फाइनाइट सीक्वेंस. कितने भी आप भाई इसको रेंज सेट कह सकते हो, आप कलेक्ट कीजिए कितने डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितने इसके अंदर. फॉर एग्जांपल अभी इसी मैप को मैं ऐसे डिफाइन करता, f is map from natural number n to r बाउंड नहीं होगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो f of 1 इसमें लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखेंगे f of 1 is 1, f of 2 is how much, 4, f of 3 is how much, 9 and so on. But in this case, right, तो अब ध्यान से see the difference between this sequence, I mean this sequence and this sequence. One more sequence let me write, then I will start explaining everything, right? तो हमने दो तरह की सीक्वेंस लिखी है, मैं सबको लिख देता हूँ ऊपर क्या क्या लिखा है. एक सीक्वेंस पहले लिखी है आपने, f of n is defined, जो मैं इसे xn लिख देता हूँ, x of n is defined as -1 raised to the power n, correct? When n belongs to natural number, तो डोमेन क्या होता है, natural number होता है. Another sequence I have just described, x of n square when n belongs to n. Now let us see one more, x of n is equals to 1 by n, correct? पहले दो को तो आपने देख लिया, पहले में एलिमेंट्स कितने थे, दो ही थे, 1 -1 थे, इसके अंदर इनफिनिटी में, इसके अंदर इसको देखते हैं किस तरह होंगे एंट्रीज, 1 होंगे, 1/2 होंगे, 1/3 होंगे, 1/4 होगा एंड सो ऑन. अब यही जब आपने सीक्वेंस को डिफाइन कर दिया, यही से हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज कन्वर्जेंस, राइट? बिकॉज सीक्वेंस हमारी जो है तभी प्रोडक्टिव होती है जब वो कन्वर्जेंस, मतलब इटरेटिव सीक्वेंस जो हम बनाते हैं, अगर वो कन्वर्जेंट होते हैं उससे बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं. अगर वो डाइवर्जेंट होती है तो उसके अंदर वो खास बात नहीं होती है जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के अंदर होती है, राइट? तो अब इसको ध्यान से देखें,
Look at this sequence. Xn is equals to 1 by n, right? Here entries are 1. You put n is equals to 1, you get 1. You put n is equals to 2 here, you get 1 by 2. You put here n is equals to 3, you get 1 by 3. It keeps changing. अब देखिए अगर हम n बहुत ही large लें, n tends to infinity, very large, तो ये सीक्वेंस कहाँ टेंड कर रही होगी? जीरो की ओर कन्वर्ज कर रही होगी, राइट? यही कहलाता है कन्वर्जेंस. अगर हम बहुत लार्ज वैल्यू लें, अगर वो सीक्वेंस किसी खास नंबर की ओर जाए, राइट, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस सीक्वेंस. करेक्ट? हियर n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये आप देखेंगे कि जो xn होगी वो जीरो की ओर टेंड कर रहा होगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस, दैट इफ n इज वेरी लार्ज, तो इसकी जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो के बहुत करीब होंगे. एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, नेवर, इट विल नेवर जीरो, बट वी आर सेइंग दैट इफ यू कीप इंक्रीजिंग n, a time will come, मतलब मिसाल के तौर पे n जो है आप 10 to the power 100 मिलियन ट्रिलियन, ट्रिलियन टू द पावर ट्रिलियन, एक नौबत ऐसी आएगी कि उसके बाद से, but of course of after finite estimate, because the what is n here? N is simply here, this n is natural number, right? And n is natural number, and natural number is countable infinite. Natural number is infinite but countable, right? So if you keep increasing the value of n, likewise, so I'm saying that it's keep changing infinite. So जो sequence जो entries थी वो जीरो की ओर जो है एकदम लगेंगे बढ़ने की, तो हम कहेंगे सीक्वेंस कन्वर्जेंस है, यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे. ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं है. दिस इज नॉट अवर कन्वर्जेंट सीक्वेंस. दिस इज एक्चुअल इक्वल्स टू n पर लिखा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है. Now I hope that you are getting it. That what is the meaning of saying that if I'm saying a sequence is convergent? Means after a large value, I mean n बहुत ही large लें, right? So your sequence, I mean the terms will be very close to some finite value. Then we say that our sequence is convergent. इसमें देखें, इसमें भी आप देखेंगे तो इसके अंदर दो वैल्यूज आएंगी, 1 और -1 पे कन्वर्ज करेंगे, राइट? या तो 1 पे कन्वर्ज करेंगे, -1, क्योंकि इसकी एंट्री दो है. जितनी भी n की वैल्यू 10,000, कुछ भी n की वैल्यू नहीं, या तो 1 आएगी या -1. इसके अंदर अच्छा जिस पे वो कन्वर्ज कर रहे होते हैं उसको लोग बोलते हैं लिमिट पॉइंट. जैसे ये सीक्वेंस जो हमने जनरेट किया, इसको ऐसे में लिखा जाता है, ऐसे भी लिख देते हैं किसी बुक में, इसको ऐसे में लिखा जाता है, राइट? तो आप देखेंगे जिस पॉइंट पे कन्वर्ज, उसे हम लोग नाम देते हैं लिमिट पॉइंट. इसके अंदर दो लिमिट पॉइंट है, इसके अंदर सिर्फ एक ही यूनिक, इसका कहेंगे यूनिक लिमिट पॉइंट. So this is what we mean by sequence. और सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कन्वर्जेंट. अगर वो जैसे ये वाली सीक्वेंस क्या है? डाइवर्जेंट. अगर वो कन्वर्जेंट नहीं होती है, सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, देन इट इज डाइवर्जेंट और ऑक्सिलेट फाइनाइटली, दोनों केसेस होते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाले केस में ये डाइवर्जेंट है. ओके, सो अब उम्मीद करते समझ में आएगा कि कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, राइट? तो अब इसकी एक डेफिनेशन भी हम लोग लिखते हैं कि अगर एक्सन कोई सीक्वेंस है, राइट, टुडे जो मैंने आपको शेयर किया उसमें देख सकते हैं हमने एक डेफिनेशन लिखी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, राइट? A sequence xn is said to be converged to a real number है. देखो ये एप्सिलॉन जो डेफिनेशन होती है इतना आसान समझना नहीं होता है. मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या इसका मीनिंग है. हमने एक डेफिनेशन लिखी कन्वर्जेंट का मतलब क्या होगा. xn, सपोज xn is a sequence is said to be converged to finite number L. Listen very carefully. You have a sequence xn. You're saying that this sequence xn is set to converge some finite number alpha, sorry, L, right? If for every epsilon positive, if for every epsilon positive, there exists a natural number, positive integer कह सकते हो, positive integer n, such that xn minus l, the distance between xn minus l is less than epsilon for all n greater than to n. well, इसका मतलब समझते हैं क्या मतलब epsilon हुआ. जैसे आपने पिछले एग्जांपल में क्या कहा था, you said that आपने सीक्वेंस जनरेट की xn, this sequence which is 1 by n, this sequence 1 by n is converging to 0. what does it mean? देखिए यार एप्सिलॉन मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन कोई भी, अब जैसे जैसे ही आप n लार्ज करेंगे, यही मतलब होता है ना कि जैसे जैसे n लार्ज होगा 1 by n टेंड्स करेगा 0 के. उसका मतलब क्या हुआ? जो xn माइनस 0 की बात कर रहा है, राइट? दिस इज द मीनिंग ऑफ, आई एम टेलिंग यू दिस वन.
xn is convergent to n, यानी आपका जो xn सीक्वेंस है वो किस पे कन्वर्ज कर रहा है, l पे, राइट? वी टेकिंग द डिस्टेंस बिटवीन x and l. इसकी एप्सिलॉन के बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर, जब अपन लिमिट का पढ़ा होगा, लिमिट निकलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो क्या करते हैं, h चूज करते हैं, h, राइट ना? x हम इसमें जो है अगर राइट हैंड की बात करते हैं तो x प्लस h कर देते हैं, और लेफ्ट हैंड की बात करते हैं तो x माइनस h का. या क्या होता है, बहुत ही स्मॉल लेकिन पॉजिटिव नंबर होता है. h की वैल्यू कभी 1/2 नहीं आती है कि अब सोचो ये एप्सिलॉन जो हम जो है 10 ले लें, 100 ले लें, नंबर लेना है, पॉजिटिव लेना है, ऐसा नहीं, बहुत ही स्मॉल लिया जाता है. 10 to the power minus 10, right? 1/1000 also that can be a cell also. Okay, so it says the distance between, ये जो distance है, right, ये कितनी होगी यहाँ पे, ये 1/n minus 0. करे एक एप्सिलॉन, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगी. किसके लिए, अगर एक m ऐसा मिले, मिसाल के तौर पे हो सकता है वो m 10 to the power million हो, राइट? एक जैसे आप इंक्रीज करते रहेंगे, 1 गए, 1/2 गए, 1/3 गए, 1/4 गए, 1/100 गए, 1/100 to the power 100 गए, 1/million, मिलियन बिलियन जो भी लेना चाहे ले सकते हैं यहाँ पे, राइट? तो इस तरीके से अब वो जहां पे एक नौबत ऐसी आएगी कि अब सारे के सारे जो ये डिस्टेंस होगी ना, वो बिल्कुल से लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी. एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर, राइट? मे बी एप्सिलॉन हो सकता है, आप ले लें एप्सिलॉन ले सकते हैं 0.00001. अब इनकी डिस्टेंस घटाए, 1/n की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियस बात है 0, मिसाल के तौर पे आपने 1/1000 ले लिया, तो यहाँ 1/n रखे तो उनकी डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ही स्मॉल हो जाएगी. तो फिर से बताते हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि xn जो है वो l पे कन्वर्ज करेगा अगर एक ऐसा एप्सिलॉन पॉजिटिव मिले, मतलब इसकी डिस्टेंस xn और जिसपे कन्वर्ज कर रही है उसकी डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल हो जाए. कब, जब हम n की एक ऐसा m यानी एक सर्टेन स्टेप के बाद से, हो सकता है वो 100 स्टेप पे हो सकता है वो 10,000 स्टेप पे हो सकता है वो 100 मिलियन स्टेप पे हो, उसके आगे अगर n की वैल्यू ले तो हर बार वो एप्सिलॉन से छोटा ही निकल के आएगा. देखो एप्सिलॉन डेफिनेशन इतनी इजी नहीं समझना होती, बस हमें इतना ज्यादा डीपली इसके प्योर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, बस हमें समझना ये है कि इफ यू सेइंग दैट अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन व्हाट डज इट मीन. इट मीन दैट एक फाइनाइट वैल्यू l है जिसपे वो टेंड कर रहा होगा. कब, जब एक फाइनाइट, आफ्टर फाइनाइट स्टेप, एक फाइनाइट स्टेप के बाद से सारे के सारे जो टर्म्स होंगे वो किसी खास उसी दैट पॉइंट जिस पे आप कह रहे हैं कन्वर्ज कर रहे हैं उसकी ओर इंक्रीज कर रहे होंगे, उसकी ओर बढ़ रहे होंगे, मतलब डिस्टेंस उसकी कंटिन्यूअसली घट रही होगी. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जो लिया आपने ये 1/100 1/100, इसकी डिस्टेंस किससे घट रही है, 0 से करीब होता जा रहा है. तो 0 से करीब होता जा रहा है मतलब 0 से इसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए, 0 से और इसकी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगी बहुत छोटी होगी. कब, एक आफ्टर फाइनाइट स्टेप, वो स्टेप बताया मैंने, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंट. अब यही से हम लोग डिफाइन करते हैं जो हमको पढ़ना है, सीरीज क्या चीज होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज. अगर आप इसी सीक्वेंस के टर्म को ऐड कर दें, अगर आप इसी जो सीक्वेंस लिखी है आपने इनको ऐड करना शुरू कर दें, तो दैट इज कॉल्ड एज सीरीज. सीरीज इज द सम ऑफ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, राइट? सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. अगर आप उनको ऐड कर दें, एग्जांपल के तौर पे एक हमने एक सीक्वेंस ले लिया un, राइट? इस सीक्वेंस ले लिया, इसके टर्म मान लिए एग्जांपल के तौर पे जब पुट करेंगे तो u1 होगा, u2 रहा होगा, u3 रहा होगा, u4 रहा होगा एंड सो ऑन, राइट? इस सीक्वेंस में लिखी थी. नाउ यू ऐड देम, आप इन सबको आप ऐड कर दें, यू ऐड ऑल ऑफ देम. ओके, आई मीन ऐड कर दें u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 अप टू वेयर un प्लस अप टू इंफिनिटी तक ऐड करना होता है. Then this is called series. इसको in short I will write as sigma un and running from 1 to infinity. यहाँ पे un क्या थी, सीक्वेंस थी, सीक्वेंस के सारे टर्म को आपने ऐड कर दिया, so that is called series. तो जैसे ये आपने लिखा ना, ये this is called as series. यहाँ पे un क्या है, this is your sequence. अब यहाँ पे भी हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात करते हैं. जैसे वहां पे कन्वर्जेंट का मतलब होता है वैसे यहाँ पे डाइवर्जेंट का मतलब होता है. नाउ देयर इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन हियर,
arises that what is the meaning of convergent here, वहां तो समझ में आ रहा था भाई, जैसे से हम टर्म बढ़ाई जा रहे थे हमारी सीक्वेंस किसी खास नंबर की ओर बढ़ रही थी। लाइकवाइज 1/n, जैसे जैसे आप n इंक्रीज कर रहे थे आपकी जो टर्म थे वो 0 की ओर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन यहाँ तो ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या मतलब हुआ कन्वर्जेंट से? अगर आपका सम एक फाइनाइट नंबर आ जाए, इफ योर सम इज अ फाइनाइट नंबर, देन वी से दैट आवर सीरीज इज कन्वर्जेंट। यहाँ पे जो सीरीज में कन्वर्जेंट के जो मतलब होता है यही होता है कि जब आप उसको सम फाइंड करें, सम शुड बी अ फाइनाइट नंबर। तो आई विल से सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब इतना आसान तो है नहीं कि उसके ऐड निकाल लोगे बैठ करके, सॉरी सीरीज है, तो इसे कन्वर्ट कब कहेंगे कि अगर इसका सम एक फाइनाइट नंबर हो, सम इज अ फाइनाइट नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे उठता है कि कैसे इनफाइनाइट नंबर को ऐड कर सकते हैं। हाउ कैन यू ऐड इनफाइनाइट नंबर टर्म्स? इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर टर्म्स से कैसे ऐड कर देंगे? वी कैन नॉट ऐड देम। देन द मैथमेटिक्स से ओके होल्ड ऑन, डोंट वरी, व्हाट यू नीड टू डू, क्या करें, इसके फाइनाइट नंबर ऑफ n पार्ट हम इसका ले लें, राइट? देन वी डिफाइन अनदर थिंग, अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड पार्शियल सम। क्यों पार्शियल सम ले रहे हैं? बिकॉज इट इज नॉट इजी टू ऐड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। नहीं आसान है इसको जोड़ना भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कहां से ऐड हो जाए? Then we define, we cannot just add up all infinite number of terms of the series in ordinary way. Therefore we associate a sequence Sn which is sum of first n terms. तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम ऐसे मान लेते हैं कि sum of first n terms, sum of first n terms, I will say that is Sn. तो Sn यहाँ पे क्या है? u1 plus u2 up to इनको ऐड कर रहे हैं un तक, ये आपने ऐड कर दिया है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल सम, इसको हम लोग नाम देते हैं पार्शियल सम। अब आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर ये कन्वर्जेंट है, अगर आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी अगर ये डाइवर्जेंट। क्या, फिर से मैं बात को रिपीट करता हूँ, कहा गया कि आपने सीरीज के अंदर चूंकि इनफाइनाइट नंबर टर्म्स होते हैं, इट इज नॉट इजी जॉब टू ऐड इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एनी सीरीज। देन व्हाट वी आर डूइंग, we are considering sum of first n terms, right? This one u1 plus u2 to un, ये sum of first n terms है। अगर ये sum कन्वर्जेंट है तो हमारी जो है सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। अगर ये sum कन्वर्जेंट नहीं है तो कहेंगे हमारी सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं, राइट? देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इस सीरीज a necessary condition for convergence। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, a necessary condition for convergence of the series sigma un। sigma un मतलब क्या होता है? n running from 1 to infinity, इसको मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है, बार बार लिखेंगे नहीं। sigma un मतलब ये हुआ n running from 1 to infinity। a necessary condition for convergence of this series sigma un is that जब लिमिट निकाली, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un should be 0। अगर ये 0 है, राइट, मतलब ये कन्वर्जेंट, अगर आपसे आप कन्वर्जेंट कह रहे हैं तो ये 100% होगा। मतलब ये सम जो आपने सम है, ये जो सम जो इस ये जो सम है, इसको आप सीरीज को आप कन्वर्जेंट कह रहे हैं, ये अगर ये कन्वर्जेंट है देन दिस इज गोइंग टू बी होल्ड। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता है। उल्टा क्या होता है कि अगर हम कहें भाई अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अगर 0 आ रहा है तो ये जरूरी नहीं कन्वर्जेंट। थोड़ा सा बात को ध्यान समझा क्या करें, राइट? व्हाट आई एम सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये जरूर होल्ड करेगा, 100% होल्ड करेगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी सीक्वेंस में लिखा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, अगर मिसाल के तौर पे 1 नहीं 2 आ गया, फॉर एग्जांपल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 2 निकल के आता है, तो ये इससे जो सीक्वेंस बनेगी वो कभी भी, सॉरी सीरीज बनेगी वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। आई रिपीट माय स्टेटमेंट अगेन, ध्यान से इस बात को समझिए क्या कह रहे हैं। ये कन्वर्जेंट होगी तो ये 100% होल्ड करेगा। अगर ये होल्ड नहीं कर रहा है तो ये कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती सीरीज। एग्जांपल दिया,
एक कोई भी सीक्वेंस मान लिया, एग्जांपल के तौर पे आपको दी हुई है un, जिसका जो है n टेंस टू कैलकुलेट करते हैं 2 निकल के आता है, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर डायरेक्ट आप बता देंगे कि un जो है इज नॉट कन्वर्जेंट, ये डायरेक्ट कह सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अब बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनिए, ऑन द अदर हैंड इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, अगर ये 0 निकल के आता है, then you cannot say whether your series is convergent or not, then we cannot say, कोई कौन सा अजीब सी बात है, we cannot say that sigma un is convergent or divergent। अब अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक रिजल्ट लिखना होगा जो उस शीट में नहीं लिखा हुआ है। एक रिजल्ट है, यानी इस बात को सपोर्ट करने के लिए आपने कहा कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 100% 0 की ओर होगा। फिर आपने एक कहा, एग्जांपल दिया कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 2 आ रहा है तो आप ये आंख बंद कर कह सकते हैं कि ये कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। फिर आपने तुरंत अच्छा अगर ये 0 की ओर टेंड करे तो आपने कहा जरूरी नहीं है इन दैट केस, इसमें तो 100% कन्वर्जेंट नहीं होगा। अगर वो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 0 की ओर नहीं टेंड कर रहा है तो 100% सिग्मा un कन्वर्जेंट नहीं है। बट अगर ये 0 की ओर टेंड कर रहा है तब आप नॉट श्योर, वी कैन नॉट से whether your series is convergent or divergent, right? So I would like to give an example in support of this statement. I mean this statement, I'm talking about this one, right? So before I write that example, just let me give you a result। एक रिजल्ट देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, कहते हैं p सीरीज टेस्ट बोलते हैं उसको हम लोग, p सीरीज टेस्ट, which is not written in your sheet। It says that अगर कोई भी आपके पास सीक्वेंस है, राइट, 1 upon n raised to the power p, यहाँ n क्या है, n running from 1 to infinity, running from 1 to infinity, right, is convergent when p is strictly greater than 1 and it is divergent and sigma n running from 1 to infinity 1 upon n to the power p is divergent when p is less than equals to 1। क्या इसका मीनिंग हुआ, पहले इसका मीनिंग बताते हैं, व्हाट डज इट मीन। फिर से समझते क्या है, सिग्मा n running from 1 to infinity 1 upon n to the power p is convergent when p is strictly greater than 1 and sigma n running from 1 to infinity 1 upon p is divergent when p is less than equals to 1। यहाँ पे शामिल है इक्वल्स टू b। अब इसको एग्जांपल देते हैं, जैसे इसी पे बेस कर सवाल पूछा आपसे कि सिग्मा 1 to the power n कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। यस, कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट सर, अगर n की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। डाइवर्जेंट है अरे सर। यार तुम लोग पढ़ते नहीं ध्यान से यार, मुख्तलिफ आंसर तुम लोग दे रहे हो यार, यू नॉट गिविंग द करेक्ट आंसर। डाइवर्जेंट होगी कह रहा है, अगर p लेस देन इक्वल्स टू 1 है, पुट करो तो p1 कितना हो जाएगा, अगर ये p1 है या 1 से छोटा है देन सिग्मा 1 upon n to the power p डाइवर्जेंट होता है। इस केस में here is divergent, ये डाइवर्जेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे p is equals to 1 है। लुक वेरी केयरफुली, व्हाट द रिजल्ट सेज दैट, इसका प्रूफ आपको नहीं, क्योंकि आपको प्रूफ से मतलब नहीं, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। ये कन्वर्जेंट कब होती है, अगर p is strictly greater than 1 and if p is less than equals to 1 then this is divergent। maximum people of you saying that is convergent, just see the result ना सर व्हाट इज एज अ सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, मतलब सीरीज में डाइवर्जेंट होगा, यही है ना। तो हाँ, अब सीरीज की बात है, सीक्वेंस क्यों घुसा रहा है इसके अंदर, जो बात कही जा रही वहीं पे रहो ना, बात हो रही है सिर्फ सीरीज की, राइट, यू आर टॉकिंग अबाउट सीरीज। दिस सीरीज is divergent if p is less than equals to 1।
एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा 1 अपॉन n टू द पावर 3/2, बताएं भाई ये कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। ऑफ कोर्स कन्वर्जेंट, बिकॉज़ p Convergent. इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। ओके, नाउ अब फिर से अपने रिजल्ट पे आते हैं। आपने कहा कि अगर वही एग्जांपल लेते हैं, यू सेड दैट कि इफ you we claim that if limit n tends to infinity un is equals to 0, then it does not prove that sigma un is convergent. इसके लिए काउंटर एग्जांपल क्या है? The counter example is there if you consider un sequence as 1 by n. Now look, limit n tends to infinity. If you see here, 1 by un is equals to limit n tends to infinity 1 by n, which is equals to 0. ठीक है, ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, but sigma un, which is equals to sigma 1 by n, is divergent by p series test. हाँ, अगर ये कन्वर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये 100% होना है, इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, राइट? इफ यू सेइंग दैट, हाँ बताएं सर, जो 1 by n वाली सीरीज है उसका भी तो सम लिमिटेड नंबर को टेंड करेगा, क्योंकि बाद में सब नेग्लिजिबल होते कैसे जाएंगे। ये कैसे कह सकते हो? हाउ कैन यू से दैट? सर लेटर टर्म्स हाउ ऑफ कैन यू से नेग्लिजिबल। दैट? नहीं 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 ना, उससे क्या मतलब होता है? सम आपको फाइनाइट कैसे कर सकते हो? जीरो तो नहीं होगा ना, जीरो की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब जीरो हो गया भाई। आप इसको ऐड कर रहे हो 1 + 1/2 + 1/3 + 1 कैसे ऐड कर लोगे? इसे कैसे कर दोगे? फाइनाइट है, कहां तक जाओगे? 1/6 इसे कह रहे हो फाइनाइट आएगा? हाउ इट इज पॉसिबल इज फाइनाइट? कैसे सर फाइनाइट नंबर कह सकते हैं कि ऐड करने फाइनाइट नंबर निकल के आएगा? सर हाँ सर p = 1 पे सर वो हमेशा डाइवर्जेंट होगा सीरीज वो। हमें हमेशा डाइवर्जेंट होगा। लिखा रिजल्ट लिखा गया, एक बार समझ में नहीं। रिजल्ट क्या लिखा है? रिजल्ट हमने लिखा है कि अगर सिग्मा 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर p इज कन्वर्जेंट, ध्यान से देखिए फिर से लिख रहा हूं, अगर p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 और ये डाइवर्जेंट होगा p लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए, p इज इक्वल्स टू 1 इसी के अंदर शामिल इंक्लूड हो गया। ये रिजल्ट, इसे हम लोग p सीरीज टेस्ट कहते हैं। इसका प्रूफ भी है, लेकिन हमें प्रूफ नहीं पढ़ना। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू लर्न सम टेस्ट। अच्छा, उससे पहले आ जाए कि पॉजिटिव टर्म क्या होता है। Excuse me, हमने कहा एक सीरीज है, पूछो सर इसका क्या प्रूफ है कि 1 by n रेज़ टू पावर 3/2 का सम लिमिटेड नंबर होगा, फाइनाइट नंबर? मैंने बताया ना, इसका प्रूफ आपको नहीं सीखना है। जब आप इसका प्रूफ पढ़ेंगे, जब इसका ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है कि 1 अपॉन n टू द पावर 5/2 का सम फाइनाइट होगा कि 1 अपॉन n टू द पावर 2 का फाइनाइट सम होगा। जब आप इसे प्रूफ कर देंगे 1 अपॉन n टू द पावर p इज कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1, जब आपने ये रिजल्ट लिख दिया, जब इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ है, आप नेट देख सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं, इस पे प्रूफ पढ़ेंगे तो उसी के अंदर ये भी शामिल हो जाता है। आपको ये देखना है, ये नहीं देखना कि इसकी गारंटी क्या है। गारंटी इसकी p ग्रेटर देन 1 के लिए। रिजल्ट यहां से है, ना कि इंडिविजुअली बैठ के हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इंडिविजुअली कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे कि इसके क्या मतलब होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ आई से दैट नॉन नेगेटिव टर्म, राइट? सो इसका मतलब पॉजिटिव टर्म सीरीज मतलब क्या होता है? लेट मी टेल यू व्हाट पॉजिटिव टर्म सीरीज। फॉर एग्जांपल, यू राइटिंग हियर सिग्मा un which is equals to un plus u2 plus u3 up to un plus dot and so on। इसका मतलब हर एक टर्म पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। That is meaning of positive term series. Now there are 3 tests
बार बार इसे हम चेक करेंगे नहीं। अब इसमें क्या है, टेस्ट है जिसके हेल्प से हम पता करते हैं कि आपकी गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं। सो देयर आर 3 टेस्ट। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेशियो टेस्ट। ओके, वी हैव 3 टेस्ट टू चेक कन्वर्जेंस। इसमें सबसे पहले टेस्ट आपका आता है रेशियो टेस्ट। व्हाट रेशियो टेस्ट सेज दैट? रेशियो टेस्ट सेज दैट कि आप क्या निकाल लें कि अगर सपोज इफ, सब लिखा हुआ आपके नोट्स में, is positive term series. Now I hope that you are not getting confused when I'm saying that it is positive term series. Suppose sigma un is positive term series, and if you just calculate limit n tends to infinity, un plus 1 divided by un, right? If it is some number l, मान लेते कोई number l आता है, then there are 3 conclusions on the values of L based on which we say that our series is convergent, divergent, or sometimes this when test will fail. For example, if L is less than 1, then our given sigma un is convergent. कभी भी जब सम कन्वर्ज करेगा तो 1 से ऊपर नहीं होगा। ये टेस्ट ये कह रहा है, ये रूट इशू कह रहा है कि कभी सम जो है रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग सम कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकता अगर कन्वर्जेंट है, राइट? लेस देन 1 होना चाहिए। सेकंड, इट सेज दैट अगर ये सम बड़ा है या 1 से बड़ा है, इफ योर सम इज ग्रेटर देन 1, देन सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। इसका भी प्रूफ है, ऐसा नहीं है सोचो ये कैसे सारी बातें लिख रहे हैं, हर चीज का सारे के साथ हर एक टेस्ट का प्रूफ है। देन थर्ड वन इज, आपने देखा L लेस देन 1 के लिए बता दिया कन्वर्जेंट हो गया, L ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, ये डाइवर्जेंट हो गया। तो अगर L यहाँ पे क्या छोड़ रहे हैं, यहाँ पे हमने L = 1 छोड़ दिया। अगर L = 1 निकल के आता है, मींस सम जो है 1 निकल के आ जाए। ये जो आपने, ये सम नहीं बल्कि ये लिमिट निकाला आपने, ये दिस वन, अगर ये L जो है यानी जो निकाला आपने ये रेशियो टेस्ट un + 1, अगर ये 1 निकल के आ जाए तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। इफ L = 1, मैं थर्ड पार्ट लिखता हूं, देन टेस्ट फेल हो तो पास कैसे करें? फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है अगर टेस्ट फेल हो जाता है। टेस्ट फेल मतलब नहीं करो भाई दुकान बंद करो, फेल हो गया टेस्ट, कुछ नहीं आगे, नहीं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। further investigation is required. Okay. Right. So this is your ratio test. Ratio में क्या लिया जाता है, देखें यहाँ पे 2 consecutive term का आपने ratio लिया है, correct? All right. Then we have root test. यही सेम काम लिखेंगे इसमें root test में, सारे टेस्ट एक साथ पढ़ लेते हैं हम लोग, ताकि 1 by 1 क्वेश्चन करेंगे इस पे। Then we have second root test. रूट टेस्ट कहता है कि आपने जो निकाला था ना L, यहाँ पे इस तरीके से निकालते हैं, वो तो डिपेंड करता है ना, देखो ये सारे टेस्ट डिपेंड करते हैं यहाँ पे UN किस टाइप का है। इट डिपेंड्स कि आपको जो क्वेश्चन कहेगा नहीं आपसे कि भाई रेशियो टेस्ट लगाएं कि रूट टेस्ट लगाएं, आपको देख के मालूम पड़ जाएगा कि आपको रेशियो टेस्ट लगाना चाहिए कि रेशियो टेस्ट लगाना चाहिए भाई। इट डिपेंड्स ऑन UN. सो अगर now in this case root test we calculate UN to the power 1 by n and n tends to infinity. Okay, right? So if this is a finite number L, correct? Sorry, L need not be that number. Okay, I'm not telling that what is the N. Again same condition, if L is less than 1, then it is convergent. If L is greater than 1, then it is divergent, and test fail when L is equals to 1. Okay, it is convergent. And second, L is greater than 1.
is divergent, and the third one, L is equals to 1, test fail. Test fail मतलब क्या होता है? Further investigation required. Further investigation. I'm writing only further investigation is required. Now the last test. The last test is called comparison test. This is the most important test other than two. Comparison test. थोड़ा इसको समझना ज्यादा important है बाकी सबसे. The third one is the third test, comparison test. इसमें हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम दो उसी सीरीज से ना हम दो सीरीज बना लेते हैं. जो आपकी गिवन यूएन होती है उससे हम दो बना लेते हैं और हम कह लेते हैं कि अगर सिग्मा यूएन एंड वीएन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, इसके अंदर दो लेके चलते हैं हम. अभी देखेंगे, देखो आपको गिवन क्वेश्चन में कहोगे तो एक ही गिवन है कि वीएन कहां से मिलेगी, बात समझे यहाँ पे. एंड सिग्मा वीएन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, राइट? दो इज गिवन. अब द क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज दैट भाई आपको तो एक ही गिवन होगी यूएन, ये कहां से आप निकालेंगे? वीएन. वीएन आपको वहीं से निकालना होगा जो आपके गिवन. अभी जब सॉल्व के क्वेश्चन देखेंगे एक ऐसा सिचुएशन आएगी कि जहीं से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी वीएन क्या लेना चाहिए. If u and vn are, and sigma u and sigma vn are two positive term series, right? Then we say that sigma un is convergent. Sigma un is convergent. देखो एक्चुअली क्या है ना, अगर ऐसा हो तो दोनों के दोनों एक साथ बिहेव करते हैं. If they behave alike, अगर एक कन्वर्ज दूसरी भी कन्वर्जेंट होगी, अगर एक डाइवर्जेंट दूसरी भी डाइवर्जेंट होगी, राइट? यही कंप्लीट टेस्ट कहता है, राइट? और इस तरीके से है कि un, of course you can write they are such that the un is less than equals to k times vn, right? सारे के सारे टर्म से छोटे हैं, right? Then sigma un is convergent if sigma vn is convergent. If sigma un is convergent if ओके नाउ तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर सिग्मा यूएन जो पॉजिटिव सीरीज है दैट यूएन इज इक्वल टू k टाइम्स v है, देन बोथ सीरीज बिहेव अलाइक. अगर एक कन्वर्ज दूसरी कन्वर्जेंट होगी, अगर एक डाइवर्जेंट दूसरी डाइवर्जेंट होगी. यही मतलब होता है कंपैरिजन टेस्ट का. अभी क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन. ये सारे टेस्ट हो गए. इन्हीं टेस्ट को यूज करके हमें चेक करना है कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है. ओके, नाउ लेट अस हैव क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज गिवन एज 1 by 2 plus 2x by 3 plus 3 by 4 whole square times x square plus 4 by 5 whole cube x cube plus dot dot and infinity. आपको चेक करना है इस सीरीज को कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है. यार इनफाइनाइट सीरीज you have to check whether this is convergent or divergent. So सबसे पहले convergent divergent को un चाहिए. What you need un first of all, right? In this term, right? Sigma un लिखोगे तभी तो टेस्ट लगा पाओ. ये तो एक expanded form में लिखा हुआ है. So try to write the nth term of this series. क्या आप इस सीरीज का nth term लिखने की कोशिश करें. That will be your un. अब कैसे लिखें नेट टर्म? देखो 1 by 2 को यहाँ से तो इसमें x ही नहीं आया 1 by 2 में, तो इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो. रुक जाओ, इसके अंदर नहीं है. यहाँ स्टार्ट करते हैं. सी हियर, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ 5 है, राइट?
तो अगर इसको मैं लिखूं n तो नीचे क्या आएगा n+1. Look here, it is n+1 and then n+1 and then n+1. यहाँ पे कितना आया है पहले केस में x to the power 1, यहाँ पे x², यहाँ पे x³. तो अगर मैं इसका ऐसे लिख दूं, given series can be written as 1/2 plus sigma, ऊपर लिखा हमने n divided by n+1 to the power कितना लिखे n लिखे, here x to the power n, right, and running from 1 to नहीं n+1 upon n+2 लिखे यहाँ पे n+1 upon n+2 1 to infinity. पहले आप चेक कर लें क्या ये सेटिस्फाई करता है सारी कंडीशन को कि नहीं करता है, राइट. देखते हैं यहाँ पे, यहाँ स्टार्ट करें 1 से. पुट हियर n is equals to 1, जैसे 1 + 1 2, 1 + 2 3, ये सही आया. इधर पावर 1 है, पावर 1 है, इधर कितना आएगा x to the power 1. ओके, द फर्स्ट टर्म सेटिस्फाई. सेकंड टर्म देखते हैं, सेकंड टर्म के लिए क्या रखा हमने n to 2 रखा. 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3/4. उसकी पावर कितनी स्क्वायर है, देखो यहाँ पे n2 रखा तो स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ कितना आना चाहिए x², because you're putting n is equals to 2, so this is also going to x². Now put n is equals to 3. If you observe these, आप देखेंगे कि हाँ ये सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, right? Correct. So you just rewrite your given series in this term. अब आप कंपेयर कर सकते हैं what is your un. Now write your un. यहाँ पे un कितना होगा, look, un is equals to n+1 by n+2 whole raised to the power n times x to the power n. Now the basic question here, which test you have to use here? एक कौन सा टर्म यूज, देखें अगर पावर में n निकल के आता है, देखो यहाँ पे पावर में है ना, तो आमतौर पे आप लोग क्या यूज करें, रूट टेस्ट यूज करें. सॉरी, यस, ये सीखना है आपको, यू हैव टू लर्न इट. भाई यून इस टाइप का निकल के आ रहा, तो हम कौन सा टेस्ट यहाँ पे यूज करें, रेशियो यूज करें कि रूट यूज करें, कौन सा यूज करें. अगर देखिए पावर में n हो, n² हो, राइट, पावर में n होना चाहिए, तो हम उस केस में ज्यादा इजी होता है अगर हम ये वाला टेस्ट यूज करें. ओके, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वन. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un रेज़ टू द पावर 1/n. जरा लिखिए इसको, कितना आएगा, यहाँ पे लिखा n+n by n+2 होल रेज़ टू द पावर n x to the power 1/n. ऑफ कोर्स लिमिट n यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, तो ये ब्रेक हो जाएगी इस पे. देखिए पावर कैंसिल हो जाएगी, ये x to the power n पावर 1/n हो जाएगा. बात समझिए क्या कह रहा हूँ. अब आप 1/पावर को इंडिविजुअली, तो ये क्या बनेगा, इसे लिखेंगे तो ये पावर से पावर, ये देखिए अलग आएगा, कितना आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 upon n+2, ये पावर n और कैंसिल हो जाएगा, भाई n पावर है और 1/n पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो गया. यहाँ कितना आएगा, x पावर n है होल टू द पावर 1/n किया, n से n कैंसिल, सिर्फ x आ गया. इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. क्या है, n में पॉलिनोमियल है, आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में लिमिट केस में, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हो रही है, अगर दोनों की डिग्री सेम हो, तो उनका जो हायर डिग्री का जो कोएफिशिएंट होता है, उन्हीं वजह से उसका रेशियोस का आंसर होता है, राइट. अगर ये समझ में आया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिनको रिजल्ट याद ना हो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर हमने n से डिवाइड कर दिया 1/n और नीचे भी हमने n से डिवाइड कर दिया 6. नाउ व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n कहां टेंड करता है, 0 की ओर, तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आ गया, x आ गया, बिकॉज़ इट्स 1 + 0 divided by 1 + 0, 1 into x. अब क्या हुआ, now therefore the first, if less than 1, then sigma un is convergent. Now if x is greater than 1, then sigma un is divergent. But when x is equals to 1, test failed.
third, for x is equals to 1, test fails. Further investigation required. The next question is further investigation कहाँ करेंगे जाके? आपको further investigation करना है un पे, right? अब फिर से लिखिए un जो लिखा था आपने, put x is equals to 1 in, जो आपने लिखा था ना un is equals to कितना लिखा था आपने, n plus 1 divided by n plus 2 raised to the power n times x to the power n. अगर आपने यहाँ पे x is equals to 1 put कर दिया तो 1 to the power anything is 1, तो आपको un क्या मिल जाएगा, n plus 1, right? Your un will be n plus 1 to the power n plus 2 whole raised to the power n, right? Now the next question is, इसे कैसे चेक करें? मुझे चेक करना है कि ये जो un लिखा है ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है. इसके लिए क्या करेंगे, चलिए भाई आपके यहाँ से कॉमन कर लें इसको. Now calculating limit n tends to infinity, ऊपर हमने n कॉमन किया, right? So that is n to the power n times 1 plus 1 by n to the power n, करेक्ट. ऊपर हमने n कॉमन कर लिया, जो बाहर निकल के आएगा तो ये बन जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे भी n कॉमन किया है तो n to the power n बाहर आएगा, 1 plus 2 by n to the power n. Look, this get cancel, right? ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, you're calculating limit n tends to infinity un, करेक्ट. नाउ यू रिमेंबर, आपको रिजल्ट याद हो, एक रिजल्ट है, रिजल्ट सेज दैट लिमिट n tends to infinity 1 plus n या 1 by n लिख दे, हम to the power n लिख दे, ये e होता है. और अगर 2 by n कर देंगे तो e स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जो भी रखेंगे वो यहाँ हो जाता है, राइट? दिस वन इज दैट, भाई लिमिट के फॉर्मूले से ब्रेक कर देंगे जो आप यहाँ पहुंचे हैं, इसको यू कैन राइट फर्दर. ये फॉर्मूलाज हैं जो आपने 12th स्टैंडर्ड में सीखे होंगे. You can just write is limit n tends to infinity, लिमिट के डेफिनेशन से 1 plus 1 by n to the power n, ब्रेक हो जाती है लिमिट, डिवाइडेड बाय लिमिट n tends to infinity 1 plus 2 by n raised to the power n, राइट? ऊपर कितना आएगा, e आएगा, नीचे कितना आएगा, e स्क्वायर आएगा, राइट? यहाँ पे 2 आया ना तो e स्क्वायर हो जाएगा. Now this is going to be 1 upon e. 1 upon e क्या 0 है? नहीं, this is not equals to 0. आपने पढ़ा है ना, कंडीशन क्या है, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un 0 नहीं आया तो 100% आपकी सीरीज जो है डाइवर्जेंट है, राइट? यू रिमेंबर दैट. अब हमने क्या किया, which is not equals to, right there in the right hand side is not equals to 0, therefore sigma un is divergent for x is equals to 1. आपने कौन सा रिजल्ट यहाँ पे यूज किया है? आपने रिजल्ट ये यूज किया है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अगर 0 ना आए, then sigma un is always divergent. इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं. अगर ये 0 की तरफ नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं un जो निकाला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un कितना आया, 1 upon e. e कितना होता है, an irrational number lying between 2 and 3. भाई e क्या है, एक ट्रांसेंडेंटल नंबर भी कहते हैं e को. ये नंबर e क्या है, 2 और 3 के बीच में लाई करते हैं, अराउंड 2.7 समथिंग होता है, राइट? सो 1 upon 2.7 रखोगे कितना आएगा, वो 0 नहीं आएगा. Therefore it is divergent for x is equals to 1. This is what we mean when we say that further investigation required, right? ये पहला क्वेश्चन था जो कि हमने इसको रेशियो टेस्ट से बल्कि रूट टेस्ट से सॉल्व कर लिया इसको. okay, all right, so if you have any question you can ask me now. Any question here? हाँ बताएं सर. ये जो समीशन यूएन सीरीज आई है x इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट होगी. क्या कह रहे हो, x इज इक्वल टू 1 पे जो समीशन यूएन आए वो कन्वर्जेंट होगा ना सर? क्यों कन्वर्जेंट होगा, पता है नहीं कि कन्वर्जेंट कंडीशन क्या होती है. सम जो है लिमिट 0 की ओर, ये 0 के थोड़ा आ रहा है, कहाँ पे सम कन्वर्जेंट दिखा रहे हो यार. अगर x इज इक्वल टू 1 ये 0 की ओर कहाँ जा रहा है भाई, 0 की ओर जाए तब भी हम तो कह सकते ही नहीं है. ये तो कहा कंडीशन सर x इक्वल टू 1 क्यों माना? अरे यार तुम x को तो क्या बताओ, x टू क्या मान ले, बताओ जरा, खुद ही बताओ क्या मान ले. पढ़ते हो, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग क्या यार. उसमें क्या लिखा हुआ है, जो लिमिट निकल के आई आपकी, ये कितना निकल के आया, जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un टू द पावर 1 by n कितना निकल के आया है, x निकल के आया, x
एक्स के टर्म में आंसर आ रहा है। तो जब एक्स, अगर एक्स की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो कन्वर्जेंट हो गया, 1 हो गया। टेस्ट देखे ना, टेस्ट क्या कह रहा है कि अगर एक्स 1 से छोटा हो गया तो कन्वर्जेंट, एक्स अगर 1 से बड़ा हुआ तो डाइवर्जेंट, और अगर एक्स 1 आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। इसलिए रूल से किया ये, एक्स इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो गया। सर हाँ, सर हम जनरल टर्म को nx डिवाइडेड बाय n प्लस 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 भी तो मान सकते थे ना, तब हाफ भी मान सीरीज लो। में इंक्लूड हो जाता। आप मान लीजिए, देख लीजिए मान करके, फिर खुद देखिए आता नहीं आता है। देखिए जहन में जो क्वेश्चन है पहले से कर लें, पुट अप कागज पे लिख लें, तुरंत कागज पे लिखें, देखें, फिर सवाल पुट अप करें। ये नहीं कि क्वेश्चन रैंडमली तुरंत शुरू कर दे रहे हैं। राइट इट ऑन द पेपर, पेपर पे लिखें प्रॉपर तरीके से, फिर देखें जो बात सही कह रहे हैं वो लॉजिकली है कि नहीं। देन आस्क मी कि हाँ देखिए ऐसा हो रहा है। इट इज बेटर टू राइट ऑन द पेपर। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्या हो रहा है, क्या क्या बदतमीजी है, क्या 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 चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे हैं? हाँ मुदम्मीन और मुदस्सिर, कल से घुसने देंगे क्लास में तुमको, समझे? ये खेल नहीं चल रहा यहाँ पे, याद रखना है, दिमाग में ढालो अपने सब लोग, वरना क्लास में घुसने देंगे यहाँ पे हम। यहाँ सिर्फ पढ़ने हरकतें क्या करना, नौटंकी अपने घर के अंदर करना है, ये सब